رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر احمد علی۔ لاہور پولیس جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کے خلاف سرگرم، رواں ماہ قمار بازی میں ملوث 42 ملزمان گرفتار ہوئے، جبکہ رواں سال اب تک 371 جواری بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 15,50,000 روپے سے زائد داؤ پر لگی رقم برآمد ہوئی۔ اس موقع پر CCPO لاہور نے کہا ہے کہ جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ افسران جوئے کے اڈوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں تیزی لائیں، آن لائن گیمبلنگ میں ملوث عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان علی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انچارج یاسین بھٹی کی منمانیاں جاری۔ دفتر میں بیٹھ کر افسران کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگا، جس کے باعث ملک پور باؤوالا بازار میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ اس حوالے سے خبریں چلنے کے باوجود بھی افسران کا منظور نظر یاسین بھٹی بدستور سیٹ پر براجمان ہے اور مفت میں تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے باعث موذی مرض پھیلنے شروع ہو گئے ہیں، مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر عوام کی مشکلات دیکھ رہی ہے۔ اب یا تو انچارج یاسین بھٹی بہت تگڑا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یا پھر CEO کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کرپٹ اور نااہل ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے عوامی حلقوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انچارج یاسین بھٹی کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکم پر چنیوٹ میں معیاری سحر و افطار کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ساتھ ساتھ تمام افسران فیلڈ آپریشنز میں مصروف عمل۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 4 فوڈ پوائنٹس کو اصلاح تک بند کر دیا گیا۔ مزید بہتری کے لیے ناشتہ اور سحر افطار پوائنٹ کو تفصیلی اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ ناقص سٹوریج گندے فریزر، زنگ آلود برتن استعمال کرنے پر بھی جرمانہ عائد کیے گئے۔ سحر افطار کے پوائنٹ پر موجود کھلی نالیاں، گندا واشنگ ایریا اور بدبودار ماحول پایا جانے پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ بھاری مقدار میں ممنوعہ اور غیر معیاری ایکسپائری اشیاء بھی طلب کی گئی۔ اس موقع پر ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خوراک کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کو بین الاقوامی طرز کے مطابق لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے متحرک ہیں۔ جناح ہسپتال لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ڈرمٹو سرجری تھیٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم تھی، جبکہ افتتاحی تقریب کا اہتمام میزبان ہیڈ آف ڈرمٹولوجی ڈپارٹمنٹ جناح ہسپتال ڈاکٹر لمیس محمود ملک نے کیا تھا۔ مزید بتا رہی ہے منت زارہ اپنی رپورٹ میں۔ جناح ہسپتال لاہور میں ڈرمٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈرمٹو سرجری تھیٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم، ڈاکٹر لمیس محمود ملک اور دیگر سینئر پروفیسرز اور معزز مہمانوں نے فیتا کاٹ کر ڈرمٹو سرجری تھیٹر کا افتتاح کیا اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ اس موقع پر پروفیسر محمد جہانگیر کے نام پر آڈیٹوریم کا نام رکھنے اور پروفیسر طارق رشید کے نام پر تھیٹر کا نام رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں آمد کے موقع پر پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر طارق رشید اور پروفیسر محمد جہانگیر سمیت تمام معزز مہمانوں کا پھولوں کے گلدستے پیش کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز لافتِ کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت ڈاکٹر رفعت نے حاصل کی۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ جبکہ تقریب میں کمپیئرنگ کے فرائض ڈاکٹر ہمنا بابر اور ڈاکٹر شیراز نے ادا کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم کا کہنا تھا کہ جناح ہسپتال کے پروفیسرز اور ڈاکٹروں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جناح ہسپتال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرد خواتین مریضوں کی سہولت کے لیے آج یہاں ڈرمٹو سرجری تھیٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ جناح ہسپتال کے شعبہ ڈرمٹولوجی میں ماہر پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مریضوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینئر پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی عزت احترام دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے سینئرز کا احترام کر کے ہی ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ آن نیوز خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج 2 امپورٹنٹ چیزوں
मरीज़ों का इफ्तिताह किया है, जो कि जिन्ना अस्पताल में पहली दफ़ा मुतारिफ़ हो रही है, और बल्कि इन दोनों के इफ्तिताह के बाद पूरे पब्लिक सेक्टर में ये पहली मुतारिफ़ चीज़ें होंगी। इनमें से एक डर्मेटो सर्जिकल थिएटर है कि जो मरीज़ों के छोटे ऑपरेशंस हैं जैसे दिल की बीमारियों से वो यहाँ पर हो पाएंगे। उसके अलावा लेज़र की 2 नई मशीनें, जैसे फुलबेरी के लिए जो लेज़र है, और उसके अलावा एक्ने के बच्चों में बहुत ज़्यादा जो उनकी स्कार्स पड़ जाते हैं, ये दोनों लेज़र यहाँ पर हम लोगों ने आगाज़ कर दिया है। ये हम मैडम CM पंजाब की विजन के मुताबिक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ को देंगे। और आप देखिए कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, ये बहुत महंगा इलाज है जो जिन्ना अस्पताल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मुफ्त सारे मरीज़ों को प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल दोनों तरीके से हमने किया है। जो सर्जिकल थिएटर बनाया है उसके लिए हमने खुद फंड प्रोवाइड किए हैं जो कि हमें हुकूमत देती है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमें बहुत सारी फैसिलिटेशन करते हैं। और जो लेज़र मशीनें हैं वो डिपार्टमेंट ने अपनी मदद दाव के तहत खरीदी हैं। वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की मशीनें हैं जो कि डिपार्टमेंट ने खुद फंड जनरेट करके खरीदी है, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ के लिए ये प्रोवाइड की जाएगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी वज़ीर आला साहिबा का कि जो कि हमें ये सारी फैसिलिटेशन करने देती हैं और हमें सपोर्ट करती हैं इन प्रोविजन ऑफ फ्री केयर टू द पेशेंट। हमें अगले मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी एक सहूलत है। अगर आप देखें कि मुफ्त इलाज किसी भी एक अस्पताल में उनको मिले। दूसरी बात ये कि मरीज़ों के लिए भी पैगाम है कि बहुत अपनी जल्दी बीमारियों को लेके बहुत लेट ना करें। बहुत दफ़ा हम इधर उधर जाते रहते हैं और वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको महसूस हो कि तकलीफ में है या जल्दी बीमारी का शिकार है, तो जिन्ना अस्पताल तशरीफ़ लाएँ। हमारा अमला बिल्कुल आपकी खिदमत के लिए तैयार है। इफ्तिताही तकरीब की मेज़बान हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्ना अस्पताल डॉक्टर लमीस महमूद मलिक ने अपने खुतबा इस्तक़बालिया में कहा कि डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में डर्माटो सर्जरी थिएटर के क़याम से मरीज़ों को जल्दी बीमारियों के बेहतरीन इलाज की सहूलियात मैसर आएंगी। डर्माटो सर्जरी थिएटर के क़याम में ख़ुसूसी तावन पर अपने सीनियर्स और अपने टीम मेंबरान की मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया है। इनका कहना था कि डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाले तमाम मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर लमीस महमूद मलिक का कहना था कि ये जो आज जनरल इफ्तिताह हुआ है इसका मेन मकसद ये है कि स्किन के छोटे माइनर प्रोसीजर्स हैं वो जो है उनको करने के लिए हमारे पास जो है ये हमने साहिबा की जो है हेल्प से और भी कुछ थोड़ा सा खुद फंडिंग करके हमने इसको डेवलप किया है। और इसमें हमारी सारी टीम है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस थिएटर से मरीज़ों को क्या फ़ायदा होगा? मरीज़ों ये सारे जो प्रोसीजर्स जहाँ पर होते हैं ये आमतौर पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में हुआ करते थे। अब हमारी यही कोशिश होगी कि ये सारे जो है प्रोसीजर जो है वो हम गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट करके दें। और ना सिर्फ ये कि इससे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि इससे हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एजुकेशन है और उनकी ट्रेनिंग में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन जिन्ना अस्पताल में हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं हम सब की पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ को जितना फैसिलिटेट कर सकें। अपने रिसोर्सेज में रहकर, अपनी जो फंडिंग में रहकर हम जो प्रोसीजर्स कर सकते हैं वो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। और मज़ीद जो है इस थिएटर के अस्पताल से हमारे प्रोसीजर्स का लिस्ट में इजाफा हुआ है और हम इंशाअल्लाह ऑलरेडी हम फोटोथेरेपी कर रहे हैं, हम लेज़र्स कर रहे हैं और मज़ीद लेज़र्स भी आजकल किए गए हैं। और डॉक्यूमेंट सर्जरी जो है इसके प्रोसीजर्स भी हम इंशाअल्लाह हाँ जी। मैं आखिर में अपनी प्रिंसिपल प्रोफेसर तैयबा वसीम साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो गाइडेंस और विजन से हमने इफ्तिताही तकरीब से जिन्ना अस्पताल शोबा जल्दी अमराज के रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर और रिटायर्ड प्रोफेसर तारिक रशीद ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में अस्पताल की पुरानी यादें ताज़ा की और डर्माटो थिएटर के इफ्तिताह को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने अपने नामों पर डर्माटो थिएटर और ऑडिटोरियम का नाम रखने पर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर तैयबा वसीम और हेड ऑफ
डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर लमीस महमूद मलिक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर डॉक्टर गजाला भट्ट ने मेहमान खसूसी प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। Honor and privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion of the inauguration of Dermatosurgery Theatre and renovation of auditorium in the Department of Dermatology. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our worthy principal for gracing this ceremony with her presence and for her continuous encouragement and support towards the development of our department. Madam, thank you very much. Madam, जब भी हमें मिलती है वो यही कहती हैं कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट को क्या दिया. Madam, now we have something to say. I would also like to extend our heartfelt thanks to our respected chief guests and senior faculty members who honored us with their presence today. Your valuable time, guidance and encouragement mean a great deal to us and inspire us to continue striving for excellence in patient care, teaching and research. I would also like to acknowledge the dedicated efforts of our faculty members, residents, nursing staff, administrative team who worked tirelessly to make this event possible today. And finally, everyone who have taken time from their busy schedules to join us and share this precious moment with us. Thank you all for your presence, encouragement and support. तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों और थिएटर्स का दौरा भी किया। उन्होंने तमाम इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया और तकरीब के बेहतरीन इनकाद पर डॉक्टर लमीस महमूद मलिक और इनकी टीम को शाबाश दी। आइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल में न्यू फ्रूट मंडी एंड सब्ज़ मंडी में कार्रवाई की गई। पैरा फोर्स के ऑफिसर हसनैन मनीर ने शिकायत मसूल होने पर कार्रवाई की। कार्रवाई में दुकानदार को भारी जुर्माना किया गया। पैरा फोर्स के ऑफिसर हसनैन मनीर का कहना था, अगर कोई भी समड़ियाल शहर या किसी गांव में मुनाफाखोरी करेगा तो इस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अवाम से कहा कि अगर कोई भी आपके साथ ज्यादती करता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है तो मुझे फ़ौरन बताएं, मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। हम असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अदनान बशीर वड़ाइच के हुक्म पर 24 घंटे हाजिर हैं। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है, हम दिन रात आवाम की खिदमत करेंगे। खबरों का मियांवाली में पीएसओ पेट्रोल पंप मालिकान ने डिप्टी मैनेजर जाहद खान और सेल ऑफिसर बिलाल नियाजी की कारकर्दगी को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया है। मालिकान के मुताबिक मुश्किल हालात के बावजूद डीआई खान डिवीजन बिलखसूस मियांवाली में पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाया गया और पीएसओ पंप्स पर ईंधन की सप्लाई बिला तातुल जारी रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियांवाली से हमारे ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में पीएसओ पेट्रोल पंप के मालकान सैयद कैसर अब्बास शाह, ज़बैर खान और मलक तारिक अवान ने डिप्टी मैनेजर जाहिद खान और सेल ऑफिसर बिलाल नियाजी की खिदमत को सराहते हुए कहा है कि इनकी खिदमत और दयानतदारी के बदौलत मुश्किल हालात के बावजूद भी इलाके में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा नहीं होने दी गई। हमारे साथ हैं डीआई खान डिवीज़न के सेल ऑफिसर मियांवाली बिलाल खान नियाजी। हम इनसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि जो ये माहौल बना हुआ है जंग वगैरह का और पाकिस्तान में तेल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो पीएसओ क्या ये कमी को पूरा कर पाएगी? जी शुक्रिया शाह जी आपका। जी शाह जी, आपको पता है कि हमेशा की तरह पीएसओ पाकिस्तानियों के दिल के साथ ही धड़कता है और पीएसओ ने पहले भी हमेशा जब भी मुश्किल वक्त आया है हमेशा पीएसओ अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़ा रहा है और अब भी आप देख सकते हैं कि हमारे किसी भी पंप के ऊपर कोई इशू नहीं है। हमारे पास वाफर मिकदार में प्रोडक्ट मौजूद है और इंशाल्लाह ये सेल चलती रहेगी। कहीं पर कोई भी इशू पीएसओ की तरफ से नहीं होगा। इनका कहना था कि जब दीगर कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की कमी देखने में आई, इस वक्त पीएसओ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल मुसलसल दस्तयाब रहा, जिससे शहरियों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी सहूलत मिली। पेट्रोल पंप मालकान के मुताबिक पीएसओ इंतजामिया और मुतलका अफसरान की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस मियांवाली में ईंधन की फराहमी बरकरार रही और आवाम को किसी भी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ सैयद कैसर अब्बास शाह, ऑन न्यूज़ मियांवाली। ठल से खबर शामिल करते हैं। गढ़ी हसन गांव अल्लाह बख्श कटोहर के रिहायशियों ने पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। कटोहर बरादरी के अजीज़ अहमद कटोहर की क़यादत में
भट्टा गढ़ी स्टॉप पर टायरों को आग लगाकर सड़क बंद करके एहतजाज किया गया। एहतजाज के बायस ठल, जैकबाबाद और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि दिलमराद थाने की पुलिस ने बिलाजवाज हमारे गाँव पर चढ़ाई करके लूट मार करके अल्लाह बख्श कटोहर और फतेह मोहम्मद कटोहर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। रहनुमाओं ने SP जैकबाबाद से मुतालबा किया है कि वो खुद नोटिस लेकर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और हमारे नौजवानों को फौरी तौर पर रहा किया जाए। जैकबाबाद में अली मोहम्मद अवामी पार्टी का ईरान के हक में एहतजाज, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। जैकबाबाद अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानब से ईरान पर अमरीका और इसराइल की मुबैना जारहियत और हमलों के खिलाफ जैकबाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन दिलमराद लशारी ने की। मुजाहिरीन ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब जैकबाबाद के सामने पहुंचकर धरना दिया और अमरीका इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत आलमी अमन के लिए ख़तरा है और मुस्लिम ममालिक को इस मामले पर मुत्तहिद होना चाहिए। मुजाहरे के दौरान शुरका ने अमरीका और इसराइल के झंडे भी नजर आतिश किए और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ईरान के खिलाफ जरहाना इक़दामात का फौरी नोटिस लिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओवन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी के हमरा कमालिया का दौरा किया और मुख्तलिफ इंतजामी तरक्याती अमूर का जायजा लिया। दौरान विजिट डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड को फाल बनाने के हवाले से सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जरूरी हदायत जारी करते हुए कहा कि बस स्टैंड को जल्द फाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को बेहतर और मुनज़्ज़म सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। बाद डिप्टी कमिश्नर ने चेक नंबर 724 गाह बे में ज़ेर तामीर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने मंसूबे पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि मंसूबे को मुकर्रर मेयार और बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि शहर के सीवरेज के मसाइल के हल और माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहसन अब्बास भी हमरा मौजूद। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर चनियोट में मेयारी सहरो अफ्तार की फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमों के साथ साथ तमाम अफसरान फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 4 फूड पॉइंट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। मजीद बेहतरी के लिए नाश्ता और सहरो अफ्तार पॉइंट्स को तफसीली इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। नाकस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंग आलूद बर्तन इस्तेमाल करने पर भी जुर्माने आयद किए गए। सहरो अफ्तार के पॉइंट्स पर मौजूदा खुली नालियाँ, गंदा वॉशिंग एरिया और बदबूदार माहौल पाया जाने पर भी जुर्माना आयद किए गए। भारी मिकदार में ममनुआ और गैर मेयारी एक्सपायर्ड एशिया भी तलब की गई। इस मौके पर तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक की तरसील से तैयारी तक तमाम मराहल को बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम में 3 शिफ्टों में 24 घंटे मुतहर्रिक हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसर जबी की ज़ेर सदारत यौम शहादत हज़रत अली के हवाले से एक जायज़ा इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में RPO भावलपुर गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा, DPO भावलपुर राना अब्दुल वहाब, जबकि वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर जब्बा, DPO रहीम यार खान, इरफान अली समो, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद मून और DPO बहावल नगर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज़ कामरान असगर शरीक हुए। इसके अलावा दीगर इंतजामी अफसरान और अहले तशरीह उलमा कराम भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में शरीक उलमा कराम में इलामा हिजर अब्बास, इलामा मोहम्मद यार चिश्ती, मौलाना याज अब्बास, मौलाना नूर मोहम्मद, सैयद गुलाम असगर शाह, सैयद मोहम्मद सबतेन, सैयद यकूद अब्बास, सैयद मजर जैदी, एहसानुल्लाह राखत, हाफिज़ मोहम्मद सादक, इकबाल हसन मेहंदी समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। हज़रत अली के मौका पर मुनक़्क़द होने वाले मजालिस और जुलूसों के इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात बरकरार लाए जाएँ। RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन ने कहा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर उलमा कराम ने रवादारी, अमन और मजहबी हम अंग के फ़रोग़ के लिए इंतज़ामिया के साथ हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत कॉन्ट्रैक्टर राना मुनव्वर हुसैन ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आर्मी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करें और जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि जंग और तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि इससे बेगुनाह इंसानी जानें ज़ाया होती हैं और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। आर्मी बरादरी को चाहिए कि वो की कम करवाने और अमन के क़याम के लिए संजीदा और फौरी इक़दाम करिए। कॉन्ट्रैक्टर राना मुनव्वर हुसैन ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर भी गहरे रंजो गम का इज़हार करते हुए कहा इनकी वफ़ात आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा सानहा है। उन्होंने मरहूम की दीनी सियासी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए दुआ की अल्लाह ताला इन्हें जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता करे।
شامل کرتے چنور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات جاری. ٹریفک پولیس کے ذریعے تمام سبلنگ ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج میں گاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں DPO ڈاکٹر نوید عاطف، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، پولیس افسران، سبلنگ کالج سٹاف، اسٹوڈنٹ نے شرکت کی. DPO ڈاکٹر نوید عاطف، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے اسٹوڈنٹ کو ٹریفک قوانین، روڈ سیفٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. موٹر سائیکل سواروں کو دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اس موقع پر موبائل پولیس اسٹیشنز اینڈ لائسنسنگ یونٹ پر اسٹوڈنٹ کو پولیس سروسز بھی فراہم کی گئی. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے سفر کو محفوظ بنائیں. ہیلمٹ آپ کے سفر کو محفوظ اور خاندان کی خوشیوں کا ضامن ہے. کم عمر بچے ڈرائیونگ سے اجتناب کریں. 18 سال سے زائد عمر پر اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق SHO رانا راشد ہمراہ ٹیم SI توصیف تے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا. گریلونا چاکی پر بیوی کو قتل کرنے والا سفاک قاتل شوہر گرفتار. تھانہ شمس کالونی کی حدود میں شوہر نے آہنی راڈ کے وار کر کے بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا. پولیس نے تاب ملتے ہی وقوع کا فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش عمل میں لائی. اسلام آباد IG اسلام آباد میں وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے DIG اسلام آباد کی زیر نگرانی پولیس ٹیمیں تشکیل دی. تھانہ شمس کالونی انویسٹیگیشن ٹیم نے ٹیکنیکل اور انسانی ذرائع سے ملزم کو ٹریس کر کے قلیل وقت میں گرفتار کر لیا. ملزم سے آلائے قتل، آہنی راڈ اور واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برآمد. تفتیش کے مطابق ملزم نے گریلونا چاکی کی وجہ سے بیوی کو قتل کیا. مزید تفتیش جاری ہے. بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا جائزہ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں یوم شہادت حضرت علی جمعۃ الوداع اور عید الفطر 2026 کے موقع پر سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایمرجنسی پلان، سیکیورٹی انتظامات، سیکیورٹی سرویلنس، مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامی اقدامات پر غور کیا گیا. ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے ہدایت کی ہے جمعۃ الوداع اور یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں، جبکہ سیکیورٹی ادارے جلوسوں اور اجتماعات کے مقامات پر سویپنگ مؤثر نگرانی کا نظام قائم کریں. اجلاس میں عید الفطر کے موقع پر پارکوں اور تفریحی مقامات پر لگائی جانے والے میکینیکل راڈز اور جھولوں کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی ہے اور واضح کیا گیا کہ PHA کی اجازت کے بغیر کسی بھی میکینیکل راڈز یا جھولے کو نصب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اجلاس میں سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 باقر حسین نے عید الفطر کے موقع پر ضلع بھر میں انتظامات پر بریفنگ دی، جبکہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی خلیل احمد، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر حمزہ احتشام اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. پیر محل سے تحصیل رپورٹر شکیل حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے تحت سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر اقرا گرلز کالج سندھیا والی کیمپس میں سکول سیفٹی ٹریننگز کا انعقاد کیا گیا اور ٹریننگز دی گئی. انچارج پیر محل ریسکیو 1122 وحید انور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیفٹی ٹریننگ میں اسٹوڈنٹس کو ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے بارے میں آگاہی دی. اس موقع پر ڈائریکٹر اقرا کالج سر شریف ساجد، پرنسپل شکیل حیدر بھی ساتھ موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.